11 ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9th चैप्टर 1st सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 विल द लैंड सस्टेन्स क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। Scientific reports and indicates that the modern farming methods have abused the natural resource base। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट की संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार पर अति उपयोग किया है। In many areas, green revolutions is associated with the loss of soil fertility due to increased use to chemical fertilizer. Also, continuous use of groundwater for tube well irrigations has led to the depletion of the water table. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to destroy them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के लिए भूमि जल के सतत प्रयोग में भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। यह एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हम पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivations in Palampur. About 1/3 of the 450 families are landless. 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivations। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम से लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज who own land, 250 families cultivated small plot of land less than 2 hectares in size. Cultivations of such plot does bring adequate income to the farmer family। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनमें से के पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। इन 1960 गोविंद वाज ए फार्मर विथ 2.25 hectares of largely irrigated land. With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land. Thought they did not live very comfortable. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 75 hectares, 0.75 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर सिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वह बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार में अपनी एक भैंस से होने वाली
कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा वह अपना गुजारा कर सकते थे। गोविंद की मृत्यु होने के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बांट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु इस अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। You can see the large number of small plot sketched around the village in the pictures. They are cultivated by the small farmer. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plot that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate from more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land standing over 10 hectares for more. आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे किसान खेती करते हैं और दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार का प्लाट है। पालमपुर में मझौले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि की खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर है या इससे अधिक भूमि है। Who will provide the labor? श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? After land, labor is the next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers, along with their families, cultivate their own field. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire from laborers to work on their field. भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन में का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में सब बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझौले और छोटे और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिक को किराए पर लगाते हैं। Farm laborers come either from landless families or families cultivating small plot of land. Unlike farmers, laborers do not have a right over the farm. Laborers come either from landless families or families cultivating small plot of land. Unlike farmers, laborers do not have a right over the crops ground on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. Wages can be in cash or in kind. Example, crops. Sometimes laborers get meals. Also, wages vary widely from regions to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. There is also a wide variation in the durations of employment. A farm laborer might be employed on a daily basis on or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवार से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वह काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों का भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेतों में एक दूसरे से कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूर के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम में रखा जाता है। Dala is a landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. The minimum wages for a farm laborer set by the government is ₹300 per day. March 2017, but Dala gets only ₹160
देयर इज heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for labor wages. Dala complains about his situations to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 115 रुपये अप्रैल 2011 में अनिर्धारित है, लेकिन एक दिन का न्यूनतम वेतन जो था 300 रुपये पर मंथ था, जबकि लेकिन डॉलर को मात्र 160 रुपये ही मिलता था। पालमपुर खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा थी, इसलिए लोग कम वेतन में काम करने को सहमत हो सकते थे। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निधनतम व्यक्ति में से एक हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now need more money than before. आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि खेती में आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब किसान को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे लगाना चाहिए। Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital they borrow from a large farmer or the village money lenders or the traders who supply various input for cultivation. The rate of interest on such loan is very high. They are put to great distress to repay the loan. असंख्य छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे उधार लेना पड़ता था। वह बड़े किसानों से वह गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों की कर्ज लेते थे। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती थी। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल farmer, the medium and large farmer have their own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own saving? You shall find the answer in the next section. छोटे किसानों के लिए विपरीत मझोले और बड़े किसानों के लिए खेती की से बचत होती थी। इस तरह के वो आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते थे। इन किसानों की बचत कैसे होती थी, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। थैंक यू।